My dear students, I welcome you to a yet another session of the multiple choice questions. बात हमारी चल रही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की, और आज के लेक्चर में हमने जो आपको 10 सवालात भेजे थे उन सभी सवालात के जवाब तलब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 10 सवालों का सिलसिला उनके जवाबों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, if the stress is increased, the ratio of stress and strain, what will happen? So according to Hooke's law, stress is directly proportional to strain, माने stress upon strain is constant, which is called as modulus of elasticity। और यहाँ पे पूछ रहे कि स्ट्रेस बढ़ाई तो क्या होता है, तो जिस प्रपोर्शन में हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे उसी प्रपोर्शन में स्ट्रेन भी बढ़ेगा और उनका रेशो कांस्टेंट रहता है। इसलिए यहाँ का जवाब पहले सवाल का है डी रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज डी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, चलिए रुक करते हैं दूसरे सवाल का। द बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी। ओके, हम इसको के लिखते हैं, सीबीएसई के कुछ बुक्स में उसको बी लिखा गया, बल्क मॉड्यूलस, बी फॉर बल्क। If it is subjected to uniform pressure P, okay, so dP is equal to P। जो हम कन्वेंशंस इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक जो dP है वो P है। The fractional decrease in the radius, dr upon r उन्होंने पूछा है। What is the fractional decrease in the radius? आसान है, गौर से समझिएगा। B is equal to, या पहले हम अपना अपना फॉर्मूला लिखते हैं, K इज इक्वल टू VdP अपॉन dV। दिस इज B इज इक्वल टू V अपॉन dV इंटू P। dV अपॉन V इज इक्वल टू P अपॉन B। dV अपॉन V, गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है? स्फीयर का है। कितना है? 4/3 पाई r क्यूब। and dV upon V will be equal to, बड़े गौर से देखिएगा, dV upon V will be equal to 3 times dr upon r। बड़े गौर से देखिएगा इस रिजल्ट को। वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, dV upon V, change in volume upon original volume will be 3 times dr upon r। या आपने पहले लेसन में देखा है, वेयर एरर्स एंड परसेंटेज एरर, उसके बारे में हमने बात की थी। तो व्हाट इज इट? इट इज dV अपॉन V इज इक्वल टू 3 टाइम्स dr अपॉन r, देयरफॉर 3 टाइम्स dr अपॉन r इज इक्वल टू P अपॉन B। उन्होंने dr अपॉन r पूछा है, तो इट इज P अपॉन 3 टाइम्स P। dr अपॉन r is equal to P upon 3 times B। The answer is D, fourth option। The answer is D, fourth option। dr upon r is equal to P upon 3 times B। That's the second question, right? Okay, third question, काफी सारे numericals। Third question, the bulk modulus of water is 2 into 10 raised to 9। Third question, the bulk modulus of water is 2 into 10 raised to the power 9। The pressure required to reduce its volume, to reduce the given volume by 1%, dP is equal to how much? dV is equal to 1% of V। So bulk modulus is VdP upon dV। dP is equal to K into dV upon V, that is, what is K? 2 into 10 raised to 9 into dV is 1 upon 100 into V upon V। The answer is 2 into 10 raised to the power 7 Newton per meter square। dP is equal to 2 into 10 raised to the power 7, yes, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही जवाब है ए, फर्स्ट ऑप्शन। सही जवाब है ए, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए रुक करते हैं चौथे सवाल का।
two wires have diameters in the ratio 1:1, 1:2, R1 upon R2 लिखूंगा फिर मैं, is 1:2. डायमीटर का जो रेशियो होता है वही रेडियस का होता है. Length in the ratio 3:4, L1 upon L2 is equal to 3/4. And Young's moduli in the ratio 2:3, Y1 upon Y2 is equal to 2/3. Y1 upon Y2 is equal to 2/3. If they are subjected to the same stretching force, F1 is equal to F2. F1 is equal, then the ratio of the elongation produced, L1 upon L2 is equal to how much? Okay, Y1 upon Y2 is equal to F1 upon mg है ना, F1 into L1 upon pi R1 square into L1 into small l1 upon F2 into L2 upon pi R2 square into L2, Y1 upon Y2, Y1 upon Y2 is equal to F1 upon F2 into L1 upon L2 into R2 upon R1 the whole square into L2 upon L1. This is 2/3, ये कट हो जाएगा. This is 3/4 into R2 by R1 is 2/1 का square into Y1 by Y2 2/3, फोर्स कट हो गया. L1 by L2 3/4, R2 by R1 2/1 का square into L2 upon L1. 2/3 is equal to 3/4 into 4/1 into L2 by L1. So we get, ये कट हो जाएगा. L2 by L1 will be equal to, L2 by L1 will be equal to, ये कट हो जाएगा 9 by L2 by L1 will be 2/9. हमको L1 by L2 ढूंढना है. L1 by L2 is equal to 9/2, that is 4.5. The answer of the fourth question is 4.5, that is C, third option. That is C, third option. Okay, चलिए रुक करते हैं पांचवें सवाल का. A wire suspended vertically from one end is stretched by 20 newtons. F is equal to 20 Newton. F is equal to 20 Newton. Its length increases by 1%. Small l is equal to 1% of capital L. Small l upon capital L is 10 raised to minus 2. Young's modulus is 2 into 10 raised to 11. 2 into 10 raised to 11 Newton per meter square. So area of cross section ढूंढने को कहा है उन्होंने. Young's modulus is FL upon pi r square into small l. So area will be equal to FL upon A into Y, that is equal to area of cross section ढूंढना. ये इधर गया, ये नीचे आ गया. FL upon A, ये एक इधर आ गया भाई, इधर L चाहिए. So F upon L into Y, F 20 10 raised to minus 2, 2 into 10 raised to 11, 10 upon 10 raised to 9. Answer is 10 raised to minus 8 meters square. Area will be 10 raised to minus 8 meters square, that is 10 raised to minus 2 millimeter square. 10 raised to the power minus 2 millimeter square. जवाब है C, थर्ड ऑप्शन. जवाब है C, थर्ड ऑप्शन. तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल टाइप देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये 1 मार्क को आएंगे, 2 मार्क को आएंगे, 3 मार्क को भी आ सकते हैं. तो उसको पूरा सिमटा के हमने इसको MCQ में एडजस्ट किया है. छठे सवाल का रुख करते हैं. चलिए, आधे
5 सवालों तक हम पहुंच चुके हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील वायर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील वायर इज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए वो। एरिया इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सेंटीमीटर स्क्वायर करिएगा उसको। इफ यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10⁻11, यंग्स मॉडुलस is 2 into 10⁻11 Newton per meter square, then the force required to double the length, force required is how much? Double the length. Original length L ले लो, final length 2L आएगी, elongation small l आएगा which is 2L upon L, that is L. Okay, so y is equal to FL upon pi r square into small l. फोर्स पूछा है बच्चों, इट इज वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, 2 इंटू 10⁻11 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴, स्मॉल एल इज कैपिटल एल अपॉन कैपिटल एल। द आंसर इज 2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। बराबर है ना? 11/7, yes, it is 2 into 10⁻⁶ Newton. The answer is D, fourth option. The answer is D, fourth option, 2 into 10⁻⁶ Newton. चलिए, आज यंग्स मॉडुलस के सवालात हो गए, आज बल्क मॉडुलस के हो गए। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखते हैं क्या आया। 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, हैज इट्स अपर सरफेस डिस्प्लेस्ड, कितने से डिस्प्लेस हुआ? by 0.5 सेंटीमीटर, by 0.5 सेंटीमीटर, दिस इज थीटा। चलो फटाफट, tan थीटा इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 5, दैट इज 0.1। ओके, फोर्स लगाया हुआ है 0.25 न्यूटन, फोर्स लगाया हुआ है 0.25 न्यूटन, और एरिया कितना आएगा बच्चों? 5 सेंटीमीटर है, सो एरिया विल बी 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻⁴। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द टेंजेंशियल फोर्स अपॉन ए इंटू tan थीटा, दैट इज 0.25 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 0.1, ये ऊपर चला जाएगा 2500 upon 25 into 0.1. The answer which I get is 10⁻³ that is 1000, that is 1000 Newton per meter square. Okay, F tan tangential force आया 0.25, एरिया 5 का स्क्वायर, लेकिन इंटू 10⁻⁻⁴ करना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। tan थीटा आया 0.1। है क्या ऑप्शन? यस, द आंसर इज डी, फोर्थ ऑप्शन। द आंसर इज डी, फोर्थ ऑप्शन। चलिए, 1 से 7 सभी सवालों को अलग अलग पार्ट के, यंग्स मॉडुलस वाले कुछ थे, बल्क मॉडुलस वाले कुछ थे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाले कुछ थे, सबको सक्सेसफुली सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिट वायर वाले क्वेश्चंस देखेंगे। कंपोजिट वायर में एक मटेरियल वायर के साथ एक दूसरे मटेरियल वायर को जोड़ दिया जाता है और फिर वायर बनती है। चलिए बात करते हैं 8वें सवाल की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम एंड स्टील वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर जॉइंड एंड टू एंड। एल्यूमिनियम एंड स्टील, ये है एल्यूमिनियम वायर और इसको ज्वाइन करा दिया गया है एक स्टील वायर से। ये है स्टील वायर, एल्यूमिनियम, और दोनों की लंबाई सेम है और क्या सेम है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ स्टील is equal to length of aluminum. Area of cross section of steel is area of cross section of aluminum. The compound wire is suspended from a rigid support and the load is suspended. Load भी same है
तो फोर्स ऑन स्टील इज इक्वल टू फोर्स ऑन एल्यूमिनियम, इसको जो लगाया गया है वो फोर्स भी सेम ही है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, Young's modulus of steel is 20/7 times Young's modulus of aluminium. Then the ratio of the increase in length of steel wire to aluminium, steel to aluminium is equal to how much? देखिएगा गौर से, y is equal to FL upon pi r square into small l, f सेम है, l सेम है, सब कुछ सेम है, तो यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन. सो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इनटू इलोंगेशन ऑफ स्टील इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ एल्यूमिनियम इनटू इलोंगेशन ऑफ एल्यूमिनियम. यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज 20/7 into Young's modulus of aluminium into elongation in steel is y of a into L of a. 20/7 into elongation in steel is equal to elongation of aluminium. Elongation of steel upon elongation of aluminium बच्चों 7/20 आता है. Elongation of steel upon elongation of aluminium ये आता है 20/7. The answer is D, fourth option. The answer is D, fourth option. नवे सवाल का रुख करते हैं अभी. When a weight of 10 kg suspended from copper wire, M1 is equal to 10 kg. The length is 3 meter. L1 is equal to 3 meter. Diameter is 0.4 millimeter. So radius 0.2 millimeter, that is 0.2 into 10 raised to minus 3 meter. Its length increases by 2.4 centimeter. L1 is equal to 2.4 into 10 raised to minus 2 meter. ये डेटा दिया गया है. If the diameter is doubled, then the extension in its length will be how much? If the diameter is doubled, तो radius भी double हो जाएगा. 0.4 into 10 raised to minus 3 meter हो जाएगा. Okay, radius double हो गया, diameter double हो गया, तो radius भी double हो गया. Then the extension in the length will be how much? So L2 is equal to how much? इसका कोई जिक्र नहीं है, और जब इसका कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है. वापस एक बार रिलेशन ढूंढेंगे. Y is equal to FL upon pi r square L. L और R में क्या रिलेशन है? तो R1 square into L1 is equal to R2 square into L2, and that's it. I think 0.2 into 10 raised to minus 3 का square into 2.4 into 10 raised to minus 2 is 0.4 into 10 raised to minus 3 का square into L2. ये नीचे आ जाएगा 0.2 upon 0.4 the whole square into 2.4 into 10 raised to minus 2 is L2. ये हो जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा 1/2 0.5, ये हो जाएगा 0.25 into 2.4 into 10 raised to minus 2 is L2. 2.4 into 0.25, जवाब आया है 0.6. 0.6 into 10 raised to minus 2 meter is L2. That is L2 is equal to 0.6 centimeter. 0.6 centimeter होता है guys. B, second option. B, second option. शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से. आखिरी सवाल आज का. A metal plate has a dimension of 10 centimeter by 10 centimeter by 1 millimeter. 10 centimeter by 10 centimeter by 1 millimeter. ये 10 centimeter by 10 centimeter है by 1 millimeter. ये 1 millimeter है, इसलिए इसको छोटा ड्रॉ किया है. So this is 10 centimeter by 10 centimeter by 1 millimeter. 10, 10, and this is 1 millimeter. Okay, देखते हैं क्या बोला है उन्होंने. One of its face having larger area is fixed. Okay, ऐसा नहीं ड्रॉ करना है फिर. One of the face having larger area, मुझे लगा इतनी जगह में बिठा दूंगा मैं, लेकिन नहीं हो रहा है. I need to get rid of this. One of the face having larger area is fixed and tangential force is applied on the opposite larger face. Okay, बड़ा वाला face है ये बड़ा वाला face है, ये कुछ ऐसे, कुछ ऐसे,
और इसको ऐसे। ओके, नाउ इसके ऊपर फोर्स एक्ट किए कराया है। ये है 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर वाला, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करा दिया है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? ओके, यहाँ की जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ की जो डिस्प्लेसमेंट है एक बुक की तरह है ये। मैं थोड़ा इसको रिफॉर्म कर लेता हूँ एक बार, इसको भी मिटा के, तो वो डायग्राम ये 10 को भी मिटा देता हूँ यहाँ से। तो जस्ट इमेजिन इट लाइक अ बुक। एक बुक है मेरे पास और ये बुक जो है उसके बड़े वाले सरफेस को फोर्स लगा दिया है। तो एरिया ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग इज 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, दैट इज 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। ये आ गया एरिया। फोर्स लगा दिया और डिस्प्लेस हो गया, वो कितना हो गया 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मिलीमीटर। सो डिस्प्लेस हो गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये थीटा है, ये आया 1 मिलीमीटर और ये कितना आया है 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मिलीमीटर, 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। सो क्या आएगा बच्चों, tan थीटा अपोजिट 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 अपॉन एडजेसेंट। तो ये आया tan थीटा इज 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 and the modulus of rigidity is 5 into 10 raised to 10. 5 into 10 raised to 10 is the modulus of rigidity. Then the tangential force is how much? Tangential force is how much? A into tan theta. The tangential force eta into A into tan theta. Eta is 5 into 10 raised to 10. Area is 100 into 10 raised to minus 4. This is 1.2 into 10 raised to minus 3. This is 5 into 1.2 into 10 raised to 10, ये 2 आया, 12 में से 7 गया, 7 आएगा। सो 7, 6 into 10 raised to the power 7, 6 into 10 raised to the power 7। चेक करिएगा ये ठीक है क्या। 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, 5 इंटू 10 रेज टू 10 है ना, एक बार मैं चेक कर लूँ। 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 10, क्वेश्चन नंबर 10, 5 इंटू 10 रेज टू 10 इंटू 10 रेज टू 1.2, so this will be equal to 10 सेंटीमीटर है ना ये। सो 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। सो दिस इज गोइंग टू बी 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। लेकिन यहाँ पे 6 वाला तो एक ही ऑप्शन है जो है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। सो कितना आया 1.2, ईटा है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 10, एरिया है 1.2, तो ये आएगा 5 इंटू 1.2 है ना वो। ओके 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 5 इंटू 1.2, ये आया 6, ये बराबर है 6 ही आएगा ये। लेकिन ये कितना आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 10, 10 टू 12। ओ यस, 10 और 12, 12 में से 7 गए, 5 आता है भाई, ये 5 बराबर है उनका। 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन आ रहा है और इसका मतलब है हमारा जवाब है सी, थर्ड ऑप्शन। हमारा जवाब है सी, थर्ड ऑप्शन। 10 सवाल सक्सेसफुली सॉल्व कर दिए हमने। अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ और सवालात के साथ, तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।